اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر 5ویں روز بھی شدید حملے۔ ایران میں شہادتوں کی تعداد 1045 ہو گئی۔ 10 سال سے کم عمر 180 بچے بھی شہداء میں شامل۔ اسرائیلی فوج کا ایران میں اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کا M17 طیارے کو تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ دارالحکومت تہران میں خوفناک دھماکوں کی آوازیں۔ آزادی اسکوائر اور مشرقی و مغربی حصوں میں بھی دھماکے۔ دارالحکومت تہران سے دھوئے کے بادل اٹھتے رہے۔ میزائل لانچ پلیٹ فارم اور فضائی دفاعی نظام کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں اب تک 300 میزائل لانچ پلیٹ فارم تباہ کیے جا چکے ہیں۔ صہیونی فوج کی اصفہان، شراز اور ہمدان میں بمباری۔ دوسری طرف امریکہ نے ایران کے 17 بحری جہاز اور آبدوز تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق سمندر میں ایرانی بحریہ کی موجودگی ختم کر دی۔ خلیج عمان اور ابنائے ہرمز میں کوئی ایرانی جہاز موجود نہیں۔ امریکی حکام کا ایران میں اب تک 1700 اہداف کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ بھارت نے ایران کو ایک بار پھر دھوکہ دے دیا۔ سری لنکا کے قریب ایرانی بحری جہاز ڈوب گیا۔ ایرانی جہاز آئرس ڈینا امریکی آبدوز کے حملے کا نشانہ بنا۔ سری لنکن بحریہ کے مطابق ایرانی بحری جہاز پر موجود 32 زخمی افراد کو بچا لیا۔ تباہ شدہ ایرانی جہاز سے 87 ایرانیوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ بحری جہاز پر عملے کے 180 افراد سوار تھے۔ ایرانی بحری جہاز بھارتی بندرگاہ سے روانہ ہوا تھا۔ ایران نے اپنے جہاز کو کچھ عرصہ بھارتی بندرگاہ پر رکنے کا کہا تھا، لیکن بھارت نے ایرانی جہاز کو نکال دیا۔ ادھر امریکہ کی سری لنکا کے قریب ایرانی بحری جہاز پر حملے کی تصدیق۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ امریکی آبدوز نے بحیرہ ہند میں ایرانی جنگی جہاز کو ڈبویا۔ امریکی جنرل کین بولے کہ ہم ایرانی بحریہ کو تباہ کر رہے ہیں۔ ایرانی میزائل حملوں میں بھی کمی آئی ہے۔ اب ہم ایران کے اندر بڑے حملے کریں گے۔ ایران کا میزائلوں کی نئی لہر سے اسرائیل پر حملہ۔ ایران نے امریکی اور اسرائیلی اہداف پر 40 میزائل داغ دیے۔ تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے میں حملے۔ ایرانی فوج کی اسرائیلی اور امریکی تنصیبات پر تابڑ توڑ کارروائیاں۔ ایران نے ابنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا بحر ہند میں امریکی بحری جہاز تباہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ کہا کہ گولہ بارود لے جانے والے امریکی بحری جہاز کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ القدر میزائل نے امریکی بحری جہاز کو ریفیولنگ کے دوران سمندر میں ڈبو دیا۔ پاسداران انقلاب کا ابنائے ہرمز میں 10 سے زائد آئل ٹینکرز پر حملہ۔ ایران کا ریاض میں CIA اسٹیشن کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ CIA کے مرکز کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا گیا۔ دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ ایرانی میزائلوں اور ڈرونز نے کویت میں امریکی نیول بیس کو نشانہ بنایا۔ بحرین میں امریکی بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز اور فوجی اڈے پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ۔ ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ بحرین پر حملے میں 160 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ ادھر ایرانی حملے میں ہلاک ہونے والے 4 امریکی فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی گئی۔ چاروں فوجی امریکی آرمی ریزرو کے 103ویں سسٹینمنٹ کمانڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا تعزیتی اجتماع ملتوی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملک بھر سے عوام کی تہران آمد کی خواہش پر تعزیتی اجتماع ملتوی کیا گیا۔ مختلف صوبوں سے شہریوں کی بڑی تعداد میں درخواستیں ملیں۔ زیادہ سے زیادہ عوامی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے جنازہ مؤخر کیا گیا۔ ادھر اسرائیلی حملے میں ایرانی سپریم لیڈر کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی محفوظ رہے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق مجتبیٰ خامنائی سپریم لیڈر کے لیے مضبوط امیدوار ہیں۔ ایرانی عبوری قیادت کے 2 خفیہ اجلاس ہوئے، دونوں میں مجتبیٰ خامنائی مضبوط ترین امیدوار ثابت ہوئے۔ مجتبیٰ خامنائی کی بطور ایرانی سپریم لیڈر نامزدگی کا اعلان آج متوقع تھا، لیکن سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر نام جاری نہیں کیا گیا۔ مجتبیٰ خامنائی کو امریکہ اور اسرائیل براہ راست ہدف بنا سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی نئے ایرانی سپریم لیڈر کو بھی قتل کرنے کی دھمکی۔ اسرائیل کورٹس کا کہنا ہے کہ خامنائی کے کسی جانشین کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایرانی حکومت کی جانب سے نامزد کردہ ہر نیا لیڈر ہمارا نشانہ ہوگا۔ نام کوئی بھی ہو، کہیں بھی چھپا ہو، اسے ختم کر دیا جائے گا۔ ایرانی حکومت کے خلاف آپریشن جاری رکھیں گے۔ ادھر اسرائیلی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ ایران جنگ سے اسرائیلی معیشت کو ہر ہفتے
3 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी लीडर्स का इन कैमरा इजलास। पार्लिमानी रहनुमाओं को पाक अफगान सूरत हाल मशरक़े वुस्ता जंग पर ब्रीफिंग दी गई। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर भी रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया। शुरका ने कौमी इत्तेहाद और खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशों को सराहा। इजलास में पार्लिमानी रहनुमाओं ने खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया। मौजूदा सूरत हाल में मिली इत्तेहाद, इत्तफाक और यगांगत की ज़रूरत पर जोर दिया। पार्लिमानी रहनुमाओं ने आइंदा के लाहे अमल के लिए तजावीज़ भी पेश की। PTI और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इजलास का बायकॉट किया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लबनानी हम मनसब नवाफ सलाम से राबता। वज़ीर-ए-आज़म की लबनान के खिलाफ इसराइली जाहियत की शदीद मज़म्मत। इसराइली हमलों से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। ब्रीफिंग पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं, मगर सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए साथ नहीं बैठेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हर मामले पर हम रियासत के साथ खड़े हैं। बानी PTI से हमारी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, फिर कहते हैं फोटो सेशन के लिए हमारे साथ आकर बैठ जाएं। हमने कौमी सलामती के मसले पर हमेशा मुल्क का साथ दिया। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। दहशतगर्दों का पीछा करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी सूरत हाल और मगरबी सरहद पर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। दौरे के दौरान शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने मुल्क के दिफा में शहदा की कुर्बानियों को कौमी सलामती की बुनियाद करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट लाइन इलाकों में तैनात अफसरान और फौजी जवानों से मुलाकात की और जवानों के आला पेशा वराना मयार, ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले को सराहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं। पेट्रोल और डीजल का 28 दिनों का जखीरा मौजूद है। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र तवानाई सप्लाई पर आला इजलास। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि कतर से LNG की दरामद रुक गई है। मुकामी गैस से तलब को पूरा कर लिया जाएगा। पेट्रोल, डीजल, LPG और एविएशन फ्यूल के स्टॉक तसल्ली बख्श करार। आलमी मंडी में तेल की कीमतों और शिपिंग रूट्स की सूरत हाल पर गौर। मुतबादिल सप्लाई रूट्स और दोस्त ममालिक से राबते तेज करने का फैसला। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की सऊदी सफीर नवाफ सईद अल मालकी से मुलाकात। पाकिस्तान की बंदरगाह याम्बो के जरिए मुतबादिल तेल सप्लाई रूट की दरख्वास्त। सऊदी अरब की पाकिस्तानी दरख्वास्त पर मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक ने कहा कि मुश्किल वक्त में हिमायत पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। उम्मीद है कि बंदरगाह याम्बो से तेल की सप्लाई में पाकिस्तान को तरजीह दी जाएगी। सऊदी सफीर ने कहा कि किसी भी हंगामी जरूरत के पेश नजर पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। ईरान को जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। अमरीकी सिफारत खाने और CIA स्टेशन पर हमले के बाद सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। दारुल हुकूमत रियाज और दीगर इलाकों में ईरानी हमलों को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। सऊदी काबीना ने कहा कि अपनी सलामती और शहरियों के दिफा के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेंगे। सऊदी अरब का खित्ते के दीगर ममालिक से भरपूर यकजहती का इजहार। दूसरी तरफ ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में बेशतर अमरीकी तनसीबात तबाह कर दी। गैर मुल्की मीडिया ने अमरीकी तबाह हाल अहम तनसीबात की तस्वीर शेयर कर दी। सऊदी अरब में अमरीकी AN-2 रडार ईरानी हमले में तबाह। बहरीन, कुवैत और UAE में थार्ड सिस्टम समेत अहम तनसीबात को मलियामेट कर दिया। उर्दन, कतर और कुवैत में भी अमरीकी हैंगर और एयर बेसिस को शदीद नुकसान पहुंचा।
ईरान का तुर्किया पर भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। तुर्किया की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर नेटो ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराया। मशरकी बहिराए रूम में तैनात दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को कामयाबी से निशाना बनाया। मिसाइल का मलबा तुर्किया के सरहदी इलाके में गिरा, कोई जानी नुकसान न हुआ। तुर्क वजारत दिफा का कहना है कि मिसाइल इराक और शाम की फजाई हदूद से होता हुआ तुर्किया की तरफ बढ़ रहा था। अपनी फजाई हदूद के दिफा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। लाहौर और कराची में अमरीकी कौंसल खानों के गैर जरूरी अमले को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। एलामिया के मुताबिक अमरीका ईरान कशीदगी के बाद खित्ते में ड्रोन और मिसाइल हमलों के खदशात हैं। अमरीका की किब्रस में तैनात गैर जरूरी सरकारी अमले और उनके अहले खानों को मुल्क छोड़ने की हिदायत। उधर उर्दन में अमरीकी सिफारत खाने को बंद कर दिया गया। ईरानी मीडिया का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि 9,000 अमरीकी खित्ते से निकल चुके हैं। अमरीकी सिफारती दफातर बराह रास्त हमलों की जद में हैं। चंद रोज में ईरान पर तबाहकुन हमले होंगे। ईरान जंग और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के आलमी मईशत पर बुरे असरात। तरसील मुतासर होने से तेल और गैस की कीमतें बढ़ गईं। कतर आज से कुदरती गैस की तरसील मुकम्मल बंद करने के लिए तैयार। खबर एजेंसी के मुताबिक कुदरती गैस को दोबारा शुरू करने में 2 हफ्ते लगेंगे। कतर दुनिया में LNG का दूसरा बड़ा बरामद कुनिंदा है। उधर बरतानवी ब्रेंट 3.3% महंगा होकर बुलंद तरीन सतह $84.07 फी बैरल तक पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल 3% इजाफे से $76.8 फी बैरल हो गया। सोने की कीमत $68 इजाफे से $5,191 फी ओंस हो गई। चांदी की कीमत फी ओंस $2 बढ़कर $85.55 हो गई। अमरीका का आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का फैसला। सदर ट्रंप का खलीजी ममालिक में बहरी तिजारत को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का ऐलान। कहा कि ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी नेवी आबनाए हुर्मुज़ जाएगी। बहरिया आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। अमरीका दुनिया को तवानाई की फराहमी में रुकावट नहीं आने देगा। जंग खत्म होते ही तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। अमरीकी सेनेटर्स की ईरान से जंग छेड़ने पर ट्रंप पर लफ्जी गोलाबारी। डेमोक्रेट रहनुमाओं ने अमरीकी इंटेलिजेंस कमेटी की ब्रीफिंग को झूठ का पलंदा करार दे दिया। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप ने नेतन्याहू की ईरान से जंग की ख्वाहिश पूरी की। सेनेटर चक शूमर बोले कि ट्रंप इंतजामिया हर घंटे जंग का जवाब बदल रही है। कभी रिजीम चेंज तो कभी न्यूक्लियर हथियार का जवाब देते हैं। सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन बोली कि ट्रंप इंतजामिया के पास ईरान से मुताल्लिक कोई मंसूबा नहीं। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि हमें बताया गया अमरीकी फौज ईरानी ड्रोन्स को नहीं रोक सकती। इस जंग में मजीद अमरीकी जानों का ज़िया हो सकता है। कैनेडियन वजीर आज़म ने अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों को बैनुल अक़वामी कानून के मुनाफी करार दे दिया। मार्क कार्नी ने कहा कि हमलों से मुताल्लिक कनाडा को पेशगी आगाह नहीं किया गया और ना ही शिरकत की दरख्वास्त की गई। अमरीका और इसराइल हमलों की कानूनी हैसियत वाज़ेह करे। उधर स्पेन ने सदर ट्रंप की तिजारती धमकी को मुस्तरद कर दिया। स्पेन की हुकूमत ने कहा कि वो मुमकिना अमरीकी तिजारती पाबंदियों के असरात से निमटने की सलाहियत रखती है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का कहना है कि ईरान जंग पर ठंडे दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। खलीज में बरतानवी नेवी को अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। अमेरिका ने ईरान जंग में मजहबी कार्ड का सहारा लेना शुरू कर दिया। अमरीकी फौजी अफसर का कहना है कि ईरान मुखालिफ जंग का मकसद बाइबल का इख्तितामी वक्त और आर्मागेडन है। अमरीकी वॉच डॉग मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन के मुताबिक अमरीकी एहलकारों को जंग का मकसद आर्मागेडन बताया जा रहा है। फौजियों को बताया जा रहा है कि ये जंग खुदा के मंसूबे का हिस्सा है। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने बयान को खतरनाक और मुस्लिम मुखालिफ करार दे दिया। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की पेंटागन के बयान की भी मजम्मत।
مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی ایران پر حملوں کے خلاف بھارتی حکومتی کی خاموشی پر شدید تنقید. کہا کہ مودی سرکار کا امریکی اسرائیلی حملوں کی مذمت نہ کرنا ناقابل فہم ہے. بھارت کے ایران کے ساتھ گہرے تعلقات تھے. محبوبہ مفتی نے ڈونلڈ ٹرمپ اور بنیامن نیتن یاہو کے پتلے نظر آتش کر دیے.